Hello everyone, this is Professor Jagdish Mimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so hello everyone. In the previous video, we have seen how to convert the given in fixed expression into its equivalent post-fixed expression using star. We have seen algorithm also. We have gone through the different example of the conversion, how an fixed expression will get converted into its equivalent post-fixed using the star. So today we will see how we will convert the given infix expression into its equivalent prefix expression using star. Okay. Last time we will see how the infix expression will get converted into postfix form using star. Okay. Now today we will see how we will convert a given infix expression. It means that the infix expression. It means that the expression which is given in infix format, and you need to convert that expression into its equivalent prefix form. And fixed expression given, you need to convert it into the prefix expression using the star. So first of all, we will see the algorithm how we can convert the infix expression into its equivalent prefix expression. The very first step is, remember this thing. Whenever you are going to convert infix to prefix, the very first step is you need to reverse the given infix expression. Whatever expression is given to you, for conversion it into the prefix, you need to reverse the expression. And before that, yeah, as you already know, whenever expression is given to you, you have to append a opening bracket and closing bracket. Whatever expression is given to you, suppose the expression is given to you likewise, any expression is given. Okay, suppose any expression is given to likewise this one is any x expression is given to you. ये कोई भी expression is given. What you have to do in the very first step, you need to add the brackets. You need to add the opening bracket, you need to add the closing bracket. Very first step, add the opening brace and the closing brace to the given expression. Suppose the x expression is any expression is given to you, call it as an x expression. You need to add opening bracket and you need to add the closing bracket to that particular expression. Now, in the second step, what you have to do, you have to, before that, you need to add this one is your first step, and in the second step, what you have to do, whatever expression is given to you, you have to reverse that expression. What you have to do? You have to reverse that expression. It means that suppose if the expression is given to you a plus b minus c divided by d into f. So what you have to do? You have to insert or you have to add the opening bracket and closing bracket to that expression. In the second step, what you have to do? You have to reverse that expression. Or you have to scan that expression from right to left. अगर आपने reverse नहीं किया है उसको, suppose you haven't made the reversing on that expression, उस expression को आपने reverse नहीं किया है, तो आपको scanning कहाँ से कैसे करना पड़ेगा? You have to start the scanning from right to left. In infix to postfix, what we have to do? We have to scan the expression from left to right. But in case of infix to prefix, first you need to add the brackets. Second step, you need to reverse the expression from left to right. आप उसको reverse कर लो, then you have to start the scanning from left to right. चलेगा. अगर आपने ये जो particular expression है, इसको reverse नहीं किया है, ये जो expression given है, इसको आपने reverse नहीं किया है, तो आपको scanning यहाँ से इस side से करना पड़ेगा. That means right to left. यहाँ से आप scan करना start करोगे इस side से. But अगर आपने ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आपने रिवर्स कर लिया, इसको आपने रिवर्स कर लिया, तो यू हैव टू स्टार्ट द स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. इफ यू हैवंट reverse the expression, so you need to scan the expression from right to left. That is from this side you have to scan the expression. इस साइड से आप स्कैन करना स्टार्ट करो.
बट यू ऑलरेडी रिवर्स द एक्सप्रेशन, यू हैव ऑलरेडी डन द रिवर्सिंग। आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको रिवर्स कर लिया, ठीक है। रिवर्स करने के बाद आप लेफ्ट टू राइट यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। इट इज ऑन योर हैंड, so you need to reverse first and then start the scanning from left to right, or else whatever expression is given to you, you have to start the scanning from right to left. Both the choice is on your hand. Okay, what is preferable for you, what is more easy for you, you need to think on that. Both the ways are fine. Okay, you can do the scanning on both two different methods, from left to right or right to left. Okay, but remember these things. If your expression already you have made a reversing on the expression, you need to start scanning from left to right. अगर आपने आपका जो एक्सप्रेशन है ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है, इट मींस दैट यू हैव टू स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट अगर आपने आपका जो एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स नहीं किया है, सो यू नीड टू स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Got it? These two things are very important. After that, the next point is, if print the operand as it is arrived. It means that while scanning, if you are doing a scanning, during the scanning, if the operands are encountered, if the operands are encountered, अगर operands आते हैं, so you have to add that operand into the expression. जो भी आपका operand आएगा, for example A, B, C, D, ये जो operands है, if the operands are encountered during the scanning, so you need to add that operand into the expression directly, Okay. Second step, if the scanning symbol is operator, because by scanning the expression, while scanning the symbols, there are two different things. One is operand and another is operator. एक तो आपका ऑपरेंड स्कैन हो सकता है या फिर आपका ऑपरेटर स्कैन हो सकता है। अगर ऑपरेंड अगर स्कैन होता है तो यू नीड टू ऐड इनटू द एक्सप्रेशन, उसको आपको एक्सप्रेशन में ऐड करना है। बट इफ द ऑपरेटर आर एनकाउंटर्ड, अगर ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होते हैं, ऑपरेटर अगर एनकाउंटर्ड होते हैं, सो यू नीड टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दैट ऑपरेटर इनटू द स्टैक। वो ऑपरेटर को आपको कहां पे डालना है, स्टैक में डालना है। इफ the incoming operator, incoming symbol is an operator, so you have to add into the stack. But while adding into the stack, what written over here, if incoming operator has higher precedence than the top of the stack, then push it onto the stack. It means that while you are scanning the operator, while the operator is scanned, you need to check the status of the stack. अगर आपका आपने जो सिंबल स्कैन किया हुआ है वो सिंबल अगर आपका ऑपरेटर है, इफ द सिंबल इज ऑपरेटर, सो यू नीड टू चेक, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द स्टेटस ऑफ द स्टैक, इस स्टैक में क्या है। ऑब्वियसली इफ द ऑपरेटर इज स्कैन, आपने ऑपरेटर स्कैन किया तो उसको आपको स्टैक में ही डालना होगा, यू नीड टू एंटर इनटू द स्टैक। बट व्हाइल एंटरिंग इनटू द स्टैक, व्हाइल पुशिंग इनटू द स्टैक, चेक द स्टेटस ऑफ द स्टैक, कि आप जब आप ऑपरेटर स्टैक में डाल रहे हो तो उसके पहले उससे हायर कैटेगरी वाला अगर ऑपरेटर ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, सो यू नीड टू पॉप दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर एंड ऐड इनटू द एक्सप्रेशन। अगेन आई विल रिपीट, when the operator are scanned, when the symbol is a operator, while scan symbol is operator, so you need to add that operator into the stack. You need to add that operator into the stack. But before adding, you need to check whether any operator already present in the stack. It means that suppose आपके stack में एक ऐसा आपका stack है, consider it, this one एक symbol आपके इसमें है, that is suppose एक opening brace वाला symbol है, okay? And suppose if there is an already exist, यहाँ पे multiplication, here multiplication is already exist, multiplication already exist कर रहा है, और आपका जो नया सिंबल है वो माइनस है, आपने नया जो सिंबल स्कैन किया है वो माइनस है, ठीक है। नाउ चेक, माइनस है, दैट मींस यू नीड टू ऐड इट इन स्टैक, आपको स्टैक में डालना पड़ेगा माइनस। बट आप माइनस को जब स्टैक में डालोगे तो यू हैव टू चेक
कि आपके स्टैक में माइनस से हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला ऑपरेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट है स्टैक में या नहीं, ठीक है। सो नाउ इफ यू ऐड द माइनस, so before minus there is a multiplication, so multiplication obviously having the highest priority than the minus, आपका जो multiplication है which is having the highest priority rather than the minus, so you need to remove multiplication and add into the expression। आपको क्या करना पड़ेगा, ये multiplication को shift करना पड़ेगा, कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इन द एक्सप्रेशन वाला जो स्टार्ट है, इन द एक्सप्रेशन जहां पे आपने टेबल में लिखा होगा, यू नीड टू शिफ्ट दैट मल्टीप्लिकेशन इनटू द स्टार्ट और इनटू द एक्सप्रेशन। एंड नाउ ये आप मल्टीप्लिकेशन को यहां से रिमूव करोगे एंड जस्ट यू नीड टू ऐड द माइनस सिंबल, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, जस्ट यू नीड टू ऐड द माइनस सिंबल। एवरीबॉडी गॉट इट? One more, if incoming operator has equal precedence with the top of the stack and incoming operators is a exponential, so pop and print top of the stack, then the test incoming operators against the new top of the stack. The same thing is repeated over here, same thing is written over here. That means if the particular operator you need to add into the top of the stack, you need to check whether the stack is having the highest priority operator or not. If the highest priority operator exists in the stack, you need to pop that operator and add into the expression. So likewise, you need to scan each and every symbol. Okay. So now, when we have seen the example of infix to postfix, so infix to postfix में क्या होता था? Once the expression will like this, suppose आपका ये इस तरीके से है, and if there is an operator, suppose multiplication, then minus, then division, likewise, whatever. Suppose these two expression, these two symbols are given to you. इस तरीके से आपका स्टैक और यहाँ पे जब क्लोजिंग मिलता है, व्हेन ओपनिंग ब्रेस को जब क्लोजिंग ब्रेस मिलता है, दैट मींस कोई भी ऑपरेटर हो, ठीक है, यहाँ पे स्टैक में अगर इस तरीके से है, ये आपका एक ओपनिंग ब्रेस है और इसको जैसे ही क्लोजिंग मिलता है, इसको जैसे ही क्लोजिंग मिलता है, तो आप क्या करते हो, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स है, whatever operators are available in that two brackets, opening and closing, so what you have to do, you have to pop all the operators available on these two brackets. So पहले आप माइनस बाहर निकालते हो, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन बाहर निकालते हो, ठीक है। एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आपका प्रीवियसली वो पॉप अप हो जाएगा। जस्ट टेक अ एग्जांपल, जस्ट कंसीडर द एग्जांपल, इफ द पर्टिकुलर here is an opening brace, here is an two operators, suppose there is a multiplication and there is a minus, and once you will get a closing symbol, once you will get a closing symbol, जैसे ही closing मिलता है, तो closing मिलते बराबर उसके अंदर में जितने भी आपके ऑपरेटर्स होंगे, okay, whatever operator is present in this particular brackets, you need to pop all the operators from that particular bracket, okay, and which will be in the reverse order because we are using the stack. So stack में क्या होता है कि जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, that is you have to remove minus first and after that you have to remove multiplication, okay, likewise in the infix to postfix. But in case of infix to prefix, what happened? Infix to prefix में क्या होगा? So infix to prefix में क्या होगा? When you will get the operator likewise, suppose this one is a closing symbol, okay, and this one is your opening brace. Okay. Now there is an operator. Suppose there is a plus and there is a minus. These two operators are in infix to prefix because we are going to start the scanning from reverse order. हम लोग एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर से स्कैन कर रहे हैं, या फिर जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप इट इज मेंशन whenever you are doing infix to prefix. So first of all, what you have to do, you have to reverse the expression. आपको एक्सप्रेशन को रिवर्स करना होता है। जब आप रिवर्स करते हो, so you will get the reversing symbol. That means suppose अगर आपके पास ये वाला सिंबल स्कैन हुआ है, ये वाला सिंबल स्कैन हुआ है दिस टाइप, ठीक है, दैट इज ये, इसको आप क्लोजिंग बोलते हैं। क्लोजिंग आपको पहले मिला, देन सपोज देयर इज एन ऑपरेटर इन बिटवीन दिस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे ओपनिंग मिला, दैट इज व्हेन यू गॉट द ब्रेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। जब एक क्लोज है तो एक ओपन हो रहा है, ठीक है। सो उस समय पे आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही आपको यहाँ पे ओपन ब्रेस मिल गया, सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे बीच में जितने भी आपके ऑपरेटर्स होंगे उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकालना है। पहले आप माइनस बाहर निकालोगे, बाद में प्लस बाहर निकालोगे, ओके।
इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या हुआ था, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस जो बीच में आया फिर उसको हम लोग बाहर निकाले। लेकिन इनफिक्स टू प्रीफिक्स में आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको रिवर्स ब्रैकेट्स मिलेंगे, एक आपका क्लोजिंग रहेगा तो दूसरा आपका ओपनिंग रहेगा, फिर दोनों के बीच में जो भी आपके ऑपरेंड्स रहेंगे, जो भी आपके ऑपरेटर्स रहेंगे उसको आपको बाहर निकालना। जस्ट वी विल सी द एग्जांपल, इट इज मोर क्लियर। नाउ यू कैन सी हियर, you can see one expression is given to you, that is a minus b plus c into d plus e bracket close minus f plus g. That expression is given to you. ये expression given है। Okay, the expression is given to you. Now what you have to do, आपको क्या करना है? See, one expression is given to you. The very first step is you need to reverse the expression. आप उसको reverse कर दीजिएगा, आप उसको reverse कर लो, या फिर you have to start the scanning from right side. आप इधर से स्कैन करना स्टार्ट करो। एक तो आप ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, you need to reverse that expression and start scanning from left to right. अगर आपने रिवर्स किया है पहले एक्सप्रेशन को, so you need to start scanning from left to right. लेकिन but if you haven't do the reversing, आपने उसको रिवर्स नहीं किया है, so you need to start scanning from right to left. That means आप यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करो, यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करो। Now, okay, what is the first symbol? First symbol is your closing brace. First symbol is your bracket. ये ब्रैकेट आपको मिला है, यहाँ से आपने स्कैनिंग करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट सिंबल इज ब्रैकेट, ब्रैकेट मिला है, ठीक है। सो आउटपुट स्टैक में आपका कुछ नहीं है, ठीक है। दैट मींस इट इज अ एक्सप्रेशन, इट्स इज अ एक्सप्रेशन, यू कैन कंसीडर एज अ एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, डिनोटेड बाय ई। नाउ स्टैक, अगर आपको जो भी यहाँ पे सिंबल कौन सा मिला है हमें, सिंबल जो मिला है दैट सिंबल इज अ operator, that means that is a closing brace, closing brace मिला, you have to put it to the stack, आपने stack में उसमें आपने उस symbol को stack में डाल दिया। what is the next symbol? Next symbol is G, next symbol क्या है आपका, G है, ठीक है। so G is a operand, G is a operand, अगर ऑपरेंड आता है तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर दो, एक्सप्रेशन में डाल दो, दैट इज ये आउटपुट स्टैक जो लिखा हुआ है वहां पे डाल दो और गिव द नेम एक्सप्रेशन, ओके। नाउ G है, so G is the operand, so directly we have to put into the stack में डाल। Now the next operation is plus, next symbol is plus, so ये next symbol आपका plus, so plus is the operator, plus is the operator, तो operator कहाँ जाएगा, stack में जाएगा, ठीक है। so देखिए आपने stack में क्या डाल दिया, plus, पहले से stack में क्या था, ये closing bracket था, अभी आपने इसमें plus डाल दिया। what is the next symbol? Next symbol is F, आपका next symbol क्या है, F है, ठीक है। so F is an operand, F operand है, so you have to add F into the that is expression, आप F किसमें डालोगे, that is output stack में, ठीक है। expression में आपको क्या डालना है, F डालना है, because F is operand, ठीक है। now what is the next symbol? Next symbol is again the opening brace, next symbol is opening brace, that means if you add this, अगर आप इसको ऐसे डालते हो, यहाँ पे opening brace डाल दिया, यहाँ पे आपने opening brace डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे एक open मिला है और एक close मिला है, you can see there is an, you can see over here there is an one opening brace and closing brace, there is an one closing brace and there is an one opening brace। जैसे ही आपको इस तरीके से आपके स्टैक में इस तरीके से आता है, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे इस तरीके से प्लस मिला है, ठीक है। दैट मींस देखिए ये आपका क्लोज हुआ है, ये आपका ओपन हुआ है, रिवर्स डायरेक्शन में मिला है। जब रिवर्स डायरेक्शन में दोनों ऑपरेटर्स आपको दोनों ब्रैकेट्स मिल गए, तो ये बीच में जो भी आपका ऑपरेटर होगा ये आपको निकाल के कहां पे ऐड करना है, आपके एक्सप्रेशन में, यानी आउटपुट वाला स्टैक है उसमें डालना, ठीक है। इट मींस दैट जैसे ही आपको ये सिंबल मिल गया, ठीक है, दैट्स ओपनिंग ब्रेस मिल गया, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, जैसे यहाँ पे आपका ये ओपनिंग वाला सिंबल मिल गया, सो व्हाट इस तरीके से आपका ब्रैकेट हो जाएगा। सो ये प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस रिमूव करके आपको क्या कहां पे डालना पड़ेगा, एक्सप्रेशन में। सो यू कैन सी यहाँ पे आपका प्लस ऐड हो चुका है, यू कैन सी आपको आपका यहाँ पे प्लस ऐड हो चुका है। नाउ यू कैन सी नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज माइनस, नेक्स्ट सिंबल इज माइनस, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल क्या है आपका, माइनस है, ठीक है।
माइनस है, सो माइनस इज एन ऑपरेटर, माइनस क्या है आपका ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर कहाँ पे ऐड होता है, ऑपरेटर आपके स्टैक में ऐड होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पे ओपन ब्रेस मिला था तो आपका ये पूरा निकल गया, आपने प्लस पूरा बाहर निकाल लिया, दैट मींस जैसे ही ओपन और क्लोज ब्रेस मिल गया तो बीच में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं यू हैव टू रिपॉप दैट ऑपरेटर एंड ऐड इट टू द आउटपुट स्टैक। तो आपने उसको ऐड कर दिया तो आपका यहाँ पे स्टैक देखिए एम्प्टी हो गया, आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। तो अभी आपका न्यू ऑपरेटर क्या मिला है आपको, माइनस मिला है, सो यू नीड टू ऐड इनटू द स्टैक। तो आपने स्टैक में ये माइनस को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सिंबल क्या है आपका, देन अगेन आपका नेक्स्ट सिंबल आया है दैट इज अ क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग ब्रेस है, सो इट इज ऑपरेटर। तो आपने देखिए पहले माइनस था तो पहले इसमें माइनस के बाद आपने ब्रैकेट ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट सिंबल इज अगेन द क्लोजिंग, नेक्स्ट सिंबल अगेन आपका ये क्लोजिंग वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिंबल आपने अगेन क्लोजिंग का ऐड कर दिया, तो देखिए माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग, ऐसे दो दो आपके क्लोजिंग सिंबल आ गए। व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ई ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका ई है, सो ई इज एन ऑपरेट, ई ऑपरेट है तो आपने ई देखिए एक्सप्रेशन में डाल दिया। वैसे आपका नेक्स्ट क्या है, प्लस है, प्लस इज एन ऑपरेटर, आप इसको कहाँ डालोगे, आप इसको स्टैक में डालोगे, तो प्लस में मैंने स्टैक में डाल दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज डी, नेक्स्ट इज डी, ओके। सो डी इज एन ऑपरेंड, डी क्या है आपका ऑपरेंड है, ठीक है। सो यू नीड टू ऐड डी इनटू द एक्सप्रेशन, तो आपने देखो डी एक्सप्रेशन में डाल दिया। नेक्स्ट इज देन देयर इज एन ओपनिंग ब्रेस, नेक्स्ट सिंबल क्या है आपका, ये वाला है आपका नेक्स्ट सिंबल, ये हो गया, दिस वन इज आल्सो ओवर, नेक्स्ट सिंबल इज ओपनिंग ब्रेस। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। सो आपका देखिए यहाँ पे मैं ऐसा अगर ओपन ऐड करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ओपन ऐड कर दिया, ओपन ब्रैकेट ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ऐड कर दिया। सो नाउ ये वाला क्लोज हो गया पूरा, देखिए ये एक इसको यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट है, प्लस है और ओपन है, यानी दो ब्रैकेट हम लोग ऐसे मिलके जो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक ओपन है एक क्लोज है, ठीक है। सो एक ओपन है एक क्लोज है, दैट मींस ये इतना पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा, ये इतना पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा। सो इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, दैट मींस उतने पार्ट में क्या है, उसमें प्लस है, तो प्लस आपको निकाल के कहाँ पे डालना है, दैट इज आउटपुट स्टैक में, दैट मींस यहाँ से आप प्लस निकालेंगे और ये कहाँ पे ऐड करेंगे आपके आउटपुट स्टैक में, आप देखिए यहाँ पे प्लस ऐड हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट ऑपरेटर इज, ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस, सॉरी नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। सो ये आपका नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑपरेटर, तो ये किसमें जाएगा, स्टैक में जाएगा। तो देखिए आपका इतना पार्ट पूरा बाहर निकल गया था, ठीक है। नाउ बचा हुआ क्या है, माइनस एंड क्लोजिंग ब्रेस, अभी आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है, सी है, तो सी क्या है आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड अगर आता है तो उसको डायरेक्टली आपको क्या कहाँ पे डालना है, आउटपुट स्टैक, ठीक है। तो आउटपुट स्टैक में आपने सी डाल दिया, देखिए सी यहाँ पे डाल दिया, स्टैक आपका एज इट इज है। उसके बाद क्या है आपका प्लस है, तो प्लस इज एन ऑपरेटर, तो ये किसमें जाएगा, स्टैक में जाएगा। तो स्टैक में देखिए माइनस, देन ये सिंबल आपका क्लोजिंग ब्रेस का, क्लोजिंग ब्रैकेट का, देन अभी आपने इसमें प्लस ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट इज बी, ठीक है, सॉरी, देन नेक्स्ट इज अगेन द दैट क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है, क्लोजिंग ब्रेस है अगेन, दिस इज द ऑपरेटर, सो फिर से आपने इसको स्टैक में डाल दिया, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सिंबल इज बी, बी है तो बी ने बी को आपने किस में डाल दिया, दैट इज एक्सप्रेशन स्टैक में डाल दिया। दैट इज व्हाट हैपेंड, हमने क्या किया, जैसे ऑपरेंड आया उसको हमने डायरेक्टली आउटपुट स्टैक में डाला। ऑपरेंड मींस ए बी सी डी जो भी दिख रहा है आपको, या आप ऑपरेंड कहां पे डालते चल रहे हैं, स्टैक में डालते चल रहे हैं। ऑपरेटर अगर आया दैट मींस आपके ब्रेस है, दैट इज ब्रैकेट्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो सिंबल है ऑपरेटर है, ये अगर एनकाउंटर होते हैं सो डायरेक्टली यू हैव टू पुट इट टू द स्टैक। वो आपको कहां पे डालना है, स्टैक में इंसर्ट करना है, यू नीड टू ऐड इट टू द स्टैक। लेकिन जैसे ही आपको ब्रैकेट मिलता है, ब्रैकेट कौन से डायरेक्शन में, एक ओपनिंग है तो दूसरा क्लोजिंग है, दैट मींस इस डायरेक्शन में अगर ब्रैकेट मिलते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इस डायरेक्शन में दैट मींस एक आपका क्लोज हुआ है तो एक आपका ओपन हुआ है, ऐसे अगर ब्रैकेट मिलते हैं और यहाँ पे कोई ऑपरेटर आता है तो ये ऑपरेटर को आपको ऐसे समय पे क्या करना है, ये पूरा आपको इतना जो पोर्शन है आपके स्टैक से रिमूव करना है एंड यू नीड टू ऐड इनटू द स्टैक, ठीक है। जैसे ही आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गया तो जो भी आपके ऑपरेटर्स रहेंगे बीच के, वो सारे ऑपरेटर्स को आपको निकालना है एंड यू नीड टू ऐड इन द एक्सप्रेशन और यू कैन ऐड इनटू द आउटपुट ऑफ स्टैक, सॉरी आउटपुट स्टैक पे उसको आपको ऐड करना है। देन नेक्स्ट इज बी, बी इज एन ऑपरेटर, यू हैव टू ऐड इनटू द स्टैक, आउटपुट स्टैक में उसको आपने डाल दिया। देन नेक्स्ट सिंबल इज माइनस, माइनस है तो माइनस इज ऑपरेटर, सो आपने माइनस को देखो ऑपरेटर स्टैक में डाल दिया, दैट इज स्टैक में डाल दिया इसको। आफ्टर दैट देयर इज एन ए, ए है सो ए इज एन ऑपरेंड, तो आप डायरेक्टली किसमें डालोगे, उसको एक्सप्रेशन में डालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, दैट इज अगेन द ओपनिंग ब्रेस, ठीक है। दैट मींस देखिए आपको ओपनिंग ब्रेस मिला है, सो ओपनिंग ब्रेस इस तरीके से आपको मिला है, यहाँ पे ऐसे मिला है, ठीक है, ऐसे मिला है। दैट मींस देखिए ये वाले ओपनिंग ब्रेस है, ये ओपनिंग ब्रेस है, एक ओपन हुआ है तो एक क्लोज हुआ है, एक ओपन है एक क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो माइनस है ये माइनस निकलेगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐड हुआ,
ठीक है, दैट मीन्स इतना पोर्शन आपका कम हो गया, ये इतना पोर्शन आपका पूरा निकल गया। ठीक है, फिर बचा हुआ क्या है, माइनस, दैट इज क्लोजिंग ब्रेस एंड प्लस। ठीक है, आफ्टर दैट अगेन फिर नेक्स्ट सिंबल इज अगेन द ओपनिंग ब्रेस। सो अगेन जब इसको मैं ऐड करूंगा, इसको अगर इस तरीके से ऐड करूंगा, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो अभी फिर से क्या बाहर निकलेगा, हमारा प्लस वाला बाहर निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ तक हमने, यहाँ तक हुआ था तो वी नीड टू रिमूव द माइनस, अभी हम लोग का प्लस बाहर निकल जाएगा, सो वी हैव टू ऐड द प्लस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट पूरा खत्म हो गया, हम लोग का एक्सप्रेशन पूरा एंड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, एम्प्टी है। सो बचा हुआ जो माइनस है, माइनस आपने कहा का क्या कर दिया, आपने स्टैक में, आउटपुट स्टैक में डाल दिया, एंड फाइनली आपका जो जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। दैट मीन्स आपको कहां तक प्रोसेस करना है, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस टिल योर स्टैक विल गेट एम्प्टी। ठीक है, दैट मीन्स प्रोसेस कहां तक करना है, आपके जो एक्सप्रेशन के पूरे सिंबल जब तक एंड नहीं होते तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। सिंपली क्या किया, जैसे लॉजिक इज व्हाट, आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको आपको राइट से स्कैन करते चलो। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहा है, इफ यू आर कंफ्यूजिंग, सो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है उसको पहले आप रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब दैट इज, पहले जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाले एक्सप्रेशन को रिवर्स करना है, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले आपका ये सिंबल आएगा, देन ये सिंबल आएगा, देन प्लस आएगा, देन एफ आएगा। सो इसको आपको रिवर्स करना है, इस तरीके से रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद उसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 टिल द एंड। उसको आपने रिवर्सिंग कर दिया। फिर आपको क्या करना है, एक एक ऑपरेटर, एक एक सिंबल को आपको स्कैन करना है। जैसे पहले सिंबल है आपका क्लोजिंग ब्रेस, स्कैन किया। ठीक है, स्कैन करते समय अगर वो सिंबल आपका ऑपरेटर है या ऑपरेंट को चेक करो। अगर वो ऑपरेटर है तो उसको आपको स्टैक में डालना है। अगर वो ऑपरेंट है, दैट मींस ए बी सी डी इस तरीके से ऑपरेंट है, तो उसको आपको एक्सप्रेशन में डालना है। एक्सप्रेशन में डाल दिया। ठीक है, सपोज ऑपरेटर है तो उसको आपको स्टैक में डालना है। ठीक है, उसके बाद इफ अगर आपका ऑपरेटर अगर आप स्कैन करते हो और ऑपरेटर को आप स्टैक में डालते हो, जब वो ऑपरेटर को स्टैक में डालते हो तो यू हैव टू थिंक कि आपके ऑपरेटर स्टैक में, आपके स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक पे जो ऑपरेटर है और आप जो नया ऑपरेटर इंसर्ट कर रहे हो उस ऑपरेटर से बड़ा ऑपरेटर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या। सपोज आप अभी माइनस डाल रहे हो लेकिन वहां पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को आप पॉप कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप वहां पे क्या डालो, माइनस डालो। लेकिन आप अभी मल्टीप्लिकेशन डाल रहे हो लेकिन ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, तो आपको माइनस निकालने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमूव माइनस, you have to add multiplication. Minus will be as it is. That means the idea is, suppose whatever new operator you are going to push into the stack, you have to check the top of the stack whether the operator already exists in the top of the stack, which is having the higher precedent to the new operator. अगर higher precedent है, higher precedence है, particular operator already exist है, और जो आप नया ऑपरेटर इंसर्ट कर रहे हो उससे हाईएस्ट वाला जो ऑपरेटर वहां पे प्रेजेंट है, तो आपको रिमूव करना है और आपके एक्सप्रेशन में ऐड करना है। लेकिन ऑलरेडी आप जो नया ऑपरेटर इंसर्ट कर रहे हो उससे छोटा ऑपरेटर, उससे लेस प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर वहां पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू डोंट हैव टू रिमूव दैट ऑपरेटर। ये एक आइडिया हो गया। सेकंड थिंग इज दैट इफ आपके जो ब्रैकेट से एक क्लोजिंग है तो दूसरा ओपनिंग है, इस तरीके से अगर मिलता है आपको ब्रैकेट से, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग है, ऐसा इस तरीके से मिला है। ठीक है, सो एक क्लोजिंग है, एक आपका ओपनिंग है, इस तरीके से मिला है। तो ये बीच वाला जो भी होगा वो आपको क्या करना है, पॉप करना है और आपके एक्सप्रेशन स्टैक में डालना है। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस व्हाइल कन्वर्टिंग द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया, यहां से यहां तक आपने पूरा सॉल्व कर लिया। सो आपका सॉल्व होने के बाद आपके एक्सप्रेशन में जो भी आएगा, यहाँ पे लास्ट में जो भी एक एक्सप्रेशन आपको मिला है, ठीक है, ये जो आपका आउटपुट स्टैक है इसमें जो भी मिलेगा, एंड लास्टली आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन मिला है उसको फिर से रिवर्स करना है। उसको फिर से आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। आपको आउटपुट स्टैक में क्या मिला, जी एफ प्लस ई डी प्लस सी इंटू बी ए माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन मिला है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लास्टली आपको जो भी एक्सप्रेशन मिला है फिर से आपको उसको रिवर्स करना है। रिवर्स आप करोगे तो ये एक्सप्रेशन का रिवर्स आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, दैट इज माइनस प्लस माइनस ए बी इंटू सी प्लस डी ई प्लस एफ जी। यानी हमने कन्वर्जन करने के स्टार्टिंग में पहले भी रिवर्स किया, दैट इज रिवर्स करके ही हम लोगों ने स्कैन किया, और फाइनली जो भी आउटपुट मिला मुझे एक्सप्रेशन स्टैक में, या फिर आउटपुट स्टैक में जो भी आउटपुट हमें मिला है उसको फिर से आपको क्या करना है, उसको फिर से आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। दैट मींस व्हाटएवर आउटपुट यू विल गेट इनटू द आउटपुट स्टैक,
you need to reverse that expression once again. That means GF plus ED plus C into BA minus plus minus, ये जो expression आपको finally मिला है उसको आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, that means अगर आपको expression मिल गया और आप उसको रिवर्स करना भूल गए, so आपका ये पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो जो भी आपको लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवर्स दैट एक्सप्रेशन वंस अगेन. दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, सो फिर से आपने इसको रिवर्स कर दिया. दैट मींस ये जो फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिला है, दैट इज इन द प्रीफिक्स फॉर्मेट. जो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन था उसका आपका ये प्रीफिक्स फॉर्म है. ठीक है, सो लाइकवाइज यू हैव टू convert the infix expression into its equivalent prefix expression using stack. Okay. In short, I will explain the steps once again. Whatever expression is given to you, you have to add two brackets, that is opening brackets and closing brackets. That second step, reverse the expression, उसको reverse कर दो या फिर आप right से scan करना start करो. So simple way, you have to reverse the expression, reverse कर लो, then give the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपके जितने भी symbols है, you have to give the numbering. After that, you have to scan each and every symbol. Scanning के दौरान अगर आपका scan किया हुआ symbol अगर operator है तो आप उसको stack में डालो, अगर operand है तो उसको आप expression में डालो. ठीक है, जब आप operator को जब आप stack में डालते हो, you have to check the condition of top of the stack. If the top of the stack is having the highest priority operator rather than the lowest, then rather than the operator you are going to put into the stack, so you need to remove that operator from the stack. Okay, and then add the new operator. Else if you are going to add the new operator into the stack, but the top of the stack's operator is already a symbol or already the operator having the lowest priority, so you need to add the symbol as it is. Okay, after that you will get the operator like opening brace and closing brace. यानी एक आपका क्लोजिंग है और दूसरा आपका ओपनिंग ब्रेस मिल गया. ओपनिंग ब्रेस जैसे ही मिलता है, सो दोनों आपका ओपनिंग ब्रेस ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रेस ब्रैकेट है, तो दोनों के बीच में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, यू नीड टू pop that operator in a reverse direction. Okay, and finally whatever expression you will get into the expression stack or output stack, you have to reverse that expression. So whatever expression you will get reversed, okay, so whatever expression you will get after reversing, so that is nothing but a prefix expression for the given infix expression. So that these are the steps you need to follow for converting the infix expression into the prefix expression. Okay, hope everybody got the algorithm how it will convert the infix expression into the prefix expression. What are the steps we need to follow while converting the infix expression into the prefix expression? Okay, hope everybody got it. So with this, thank you one and all. Thank you.